Hey guys, welcome back to another video. I'm Anushri Agrawal and you're watching channel Unicom. So this is another video in the series of strategic management and we are doing what is strategic audit. So I'm very happy that you're watching this series, you're following the series and you want the further videos. So it is like in YouTube, when you comment, when you like the videos, then only we come to know that you're watching the video series. So make sure that you do that, you let us know that you're watching the series so that we do not stop the series in between. So we are starting with स्ट्रैटेजिक ऑडिट. देखते हैं, बहुत सिंपल सा टॉपिक है स्ट्रैटेजिक ऑडिट. एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है फॉर एग्जाम्स. देयर माइट बी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो इस पूरे टॉपिक को मैंने 4 क्वेश्चंस में डिवाइड किया है, जो है व्हाट इज स्ट्रैटेजिक ऑडिट, व्हाई, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक ऑडिट एंड when is the strategic audit required, and then how do we do this strategic audit thing. मतलब ये strategic audit कैसे की जाती है. उसमें we will be doing Richard Brummel का एक strategy evaluation criteria. Then also comes one more question, that is why not easy. So there are 5 questions why this strategic evaluation is not that easy. तो 5 क्वेश्चन हमारे पास है इस पूरे वीडियो में. हम ये समझेंगे आज के वीडियो में. सबसे पहले स्ट्रैटेजिक ऑडिट क्या है. स्ट्रैटेजिक ऑडिट एक तरीके से ऑडिट है आपकी स्ट्रैटेजी की. जब आप अपनी स्ट्रैटेजी का ऑडिट करते हो कि आपने जो स्ट्रैटेजी ली है वो सही है या नहीं है, तो हम इसे स्ट्रैटेजिक ऑडिट कहते हैं. इट इज एक्चुअली द एग्जामिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, देन इवैल्यूएशन of the areas affected by the operation of strategic management process within the organization. So overall जितना भी हमने अभी तक पूरा strategic management में पढ़ा है from the very beginning till end, तो वो पूरा strategic management process जब हम हमारी organization में apply करते हैं, then उसका examination और evaluation कहलाता है strategic audit. So if you're following the series, let me know what is strategic management process. अभी तक आपके दिमाग में ये क्लियर हो गया, आपके एग्जाम भी पास में आ रहे हैं, आपने सारे वीडियोस देख चुके हो, तो आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है. इसलिए मेंशन इन द कमेंट बॉक्स व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस. ओके, और उसी का इवैल्यूएशन और एग्जामिनेशन कहा जाता है स्ट्रैटेजिक ऑडिट को. इसमें हम देख रहे हैं कि इस प्रोसेस से जो एरियाज अफेक्टेड है उसको देखना चाहेंगे. हियर वी रिव्यू the business plans, the strategies on regular basis. So it is not a one time activity. It is done on a regular basis to identify weaknesses, the shortcomings, ताकि हम एक better plan ले सकें. तो कौन से important questions in the core of strategic audit for any corporate entity lies on 2 important questions कि how well is the current strategy doing. मतलब अभी current strategy कितना अच्छा काम कर रही है, current strategy future में कितना अच्छा काम करेगी. How can this be evaluated in present and future? हम कैसे उसे evaluate कर सकते हैं, और is there any need to change the strategy? तो ये strategic management process से जो areas affect हुए हैं उनको examine और evaluate करके हम strategic audit करते हैं और पता लगाते हैं क्या हमें strategy में change लाने की जरूरत है. तो ये कहलाती है strategic audit. एग्जाम में क्वेश्चन आए तो सबसे पहले बताओगे what is the meaning of strategic audit, कि क्या मीनिंग होता है इसका. Then what questions it answers, है ना, क्या 2 important questions ये आंसर कर रही है कि पहली बात तो how well it works in present and how well it will be working in the future. Secondly, how can this be evaluated in the present and future, and how we can change is there any need to change the strategy. Okay, तो ये आ गया आपका पहला. दूसरा देखते हैं क्वेश्चन जो है why. मतलब ये हमें प्रोवाइड करेगा रीजंस कि स्ट्रैटेजिक ऑडिट को क्यों करना चाहिए और स्ट्रैटेजिक ऑडिट करने से क्या क्या फायदे हैं. ध्यान से देखिएगा. सबसे पहला फायदा ये है कि ये एक डिस्कशन प्रोवाइड करता है. एक स्ट्रैटेजिक ऑडिट के टाइम पे जो टॉप मैनेजमेंट है वो उसे एक डिस्कशन का प्लेटफॉर्म मिलता है. इट डिस्कसेस विद द ऑडिटर्स रिगार्डिंग जो नया कॉर्पोरेट एक्शन की जरूरत है, या फिर हमें एग्जिस्टिंग बिजनेस प्लान को रिव्यू करने की, चेंज करने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है. ये सबसे इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जब ये डिसाइड किया जाता है क्या कोई अर्जेंसी है कि हम स्ट्रैटेजी में चेंज लेके आए. So it also identifies the need to adjust the existing business strategies and plans. ये periodic review और evaluation करता है strategy. मतलब ये समझ लो strategic audit एक evaluation है, एक examination है कि आपकी strategy सही है नहीं है. हम ये देखेंगे कि strategy को evaluate करने के क्या criteria है आगे वीडियो में. तो अगर आपसे रीजन पूछे जाए कि क्यों हमें strategic audit करनी है, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करता है क्या हमें नीड है क्या चेंज करने की. सेकेंडली आइडेंटिफाई करता है क्या हमारी स्ट्रैटेजी को इवैल्यूएट करता है कि क्या हमारी स्ट्रैटेजी सही है या नहीं.
थर्डली ये टॉप मैनेजमेंट के साथ एक प्लेटफॉर्म, डिस्कशन प्लेटफॉर्म भी हमको प्रोवाइड करता है ताकि हम हमारी नेसेसरी कॉर्पोरेट एक्शंस के बारे में डिस्कस कर सकें. सो दीज आर द नीड ऑफ स्ट्रैटेजिक ऑडिट. Okay, now comes the next question, that is when is the strategic audit required? Although it's a periodic phenomenon कि हमको periodically करना चाहिए strategic audit in order to know कि हमारे को change की जरूरत है या नहीं है, वो सब चीजें जानने के लिए. लेकिन इन सब चीजों में भी strategic audit करनी पड़ती है जब strategy सही से काम नहीं कर रही हो, it's not working properly या फिर it is not producing the desired outcome. जो हमको strategic audit से चाहिए वो नहीं मिल रहा है, जो हमें स्ट्रैटेजी से चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो हम ऑडिट करके देखेंगे कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, आखिर प्रॉब्लम कहाँ है. देन व्हेन हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अकम्प्लिश नहीं हो रहे हैं, जब कोई मेजर चेंज हो गया है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, यू नीड टू सी कि वेदर यू आर रिक्वायर्ड टू चेंज योर एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी. उस समय भी हम स्ट्रैटेजी ऑडिट करते हैं. और जब टॉप मैनेजमेंट प्लान करता है कि अपनी जो एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजीज है उसको फाइन ट्यून करे और नई स्ट्रैटेजी को इंट्रोड्यूस करे, और या फिर इट वाज टू इंश्योर दैट द स्ट्रैटेजी जो पास्ट में अच्छे से काम की वो आगे भी हमारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ अच्छे से काम करे. दैट मीन्स इट वाज टू इंश्योर कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो कि हमारा मैक्रो एनवायरनमेंट है, माइक्रो एनवायरनमेंट है, देयर वी इंक्लूड वुड आर customers, suppliers and all those things, and the internal environment where we actually include would our employees and the people within the organization. वो सब जिसमें अपन स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करते हैं, उस सब के साथ हमारी स्ट्रैटेजी अच्छे से काम करे, तो उसे हम क्या उस समय वो स्ट्रैटेजिक ऑडिट करना चाहेंगे. तो क्या क्या रीजंस है, क्या क्या कब हम स्ट्रैटेजिक ऑडिट करते हैं. सबसे पहले लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस पेन. सबसे पहले तो वी विल सी कि वेदर इफ द स्ट्रैटेजी इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, मतलब प्रेजेंट में आपकी स्ट्रैटेजी अच्छे से काम नहीं कर रही, नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, या उसका आउटकम नहीं निकल रहा है, ठीक है, या फिर आपके गोल्स प्रेजेंट में ही आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल नहीं हो रहे हैं, या फिर एनवायरनमेंट में कोई सीवियर चेंज हो गया है जिसको आप अकाउंट करना चाहते हो, आप देखना चाहते हो कि आपकी स्ट्रैटेजी ने उसको कवर किया है या नहीं किया है, या फिर फोर्थ जब टॉप मैनेजमेंट कुछ चाहता है, टॉप मैनेजमेंट या तो आपकी नई स्ट्रैटेजी लाना चाह रहा है और पुरानी स्ट्रैटेजी को फाइन ट्यून करना चाह रहा है, या फिर टॉप मैनेजमेंट चेक करना चाहता है, इवैल्यूएट करना चाहता है कि उसकी स्ट्रैटेजी एनवायरनमेंट के साथ चलने वाली है या नहीं. आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज क्वाइट इजी. वापस से याद करते हैं कब हम स्ट्रैटेजिक ऑडिट करेंगे, या तो हमारी प्रेजेंट स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है, उसमें गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सब चीज नहीं हो पा रहे हैं, या एनवायरनमेंट में कोई सीरियस चेंज हो गया है, या फिर टॉप मैनेजमेंट चाहता है कि हम हमारी प्रेजेंट स्ट्रैटेजी को फाइन ट्यून करें या फिर नई स्ट्रैटेजी इंट्रोड्यूस करें, और साथ ही साथ हम ये चेक करें कि हमारी स्ट्रैटेजी सही है या नहीं, तब हम स्ट्रैटेजिक ऑडिट करवाते हैं. ओके, so let's move on to the next thing कि how this thing is done. Means we have talked so much about the strategic audit thing. ये कैसे की जाती है. स्ट्रैटेजिक ऑडिट में मेनली 3 एक्टिविटीज हैं. सबसे पहले भी एग्जामिन द अंडरलाइंग बेसिस ऑफ द फर्म स्ट्रैटेजी, कि फर्म स्ट्रैटेजी एक्चुअली है कैसी. देन वी कंपेयर द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, जैसे कंट्रोलिंग में करते हैं, वी कंपेयर द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स विद द एक्चुअल रिजल्ट्स, एंड देन वी टेक द करेक्टिव एक्शन. ठीक है, ये दोनों तो सिंपल ठीक है, लेकिन हम एग्जामिन कैसे करेंगे अंडरलाइंग बेसिस ऑफ द फर्म स्ट्रैटेजी. इसमें हम स्ट्रैटेजी को इवैल्यूएट करेंगे. फर्स्ट यू इवैल्यूएट योर स्ट्रैटेजी, देन यू कंपेयर द एक्चुअल रिजल्ट्स विद द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, एंड देन यू डू द करेक्टिव एक्शन. सो हाउ दिस एग्जामिनेशन इज डन, उसके लिए हमको बताया है रिचर्ड ड्यूमल ने एक क्राइटेरिया, स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन क्राइटेरिया. रिचर्ड ड्यूमल सेज दैट द स्ट्रैटेजी इज नॉट व्हाट यू विश वुड हैपन, मतलब जो आपके चाहते हो वो स्ट्रैटेजी नहीं है, इट इज एक्चुअली जो आप करते हो वो स्ट्रैटेजी है. इट इज अ सेट ऑफ प्रैक्टिकल एक्शंस फॉर मूविंग फॉरवर्ड. कोई भी स्ट्रैटेजी कोई वांट, विश, चाहत, हमारी इच्छा नहीं होती है. आप जो प्रैक्टिकल एक्शंस लेते हो वो ही आपकी स्ट्रैटेजी बन के आगे निकलती है. तो हम देखते हैं इस यही रिचर्ड ड्यूमल ने जिन्होंने इतनी अच्छी बात की, इस कोट को आप एग्जाम में लिख सकते हो, इट विल हेल्प यू गेट मोर मार्क्स. देन आप यही रिचर्ड ड्यूमल ने क्या स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, उन्होंने 4 चीजें बताई हैं, जैसे कॉन्सोनेंस, कंसिस्टेंसी, एडवांटेज एंड फिजिबिलिटी. तो इट इज यू कैन रिमेंबर दिस बाय फेक, it can be this FACC, so it can be fake that you can remember the strategy by. So एक बार थोड़ा it is a change in the spelling.
सो जस्ट टू रिमेंबर दिस, बहुत इजी है, कॉन्सोनेंस, कंसिस्टेंसी, एडवांटेज और फिजिबिलिटी। एक एक को समझते हैं। सबसे पहले फिजिबल होना चाहिए, प्रैक्टिकली फिजिबल होना चाहिए। यू मस्ट हैव रिसोर्सेज, आपका फिजिकल, ह्यूमन, इन एनवायरमेंटल और बाकी सारे रिसोर्सेज, फिजिकल, ह्यूमन, फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपके एंटरप्राइज के पास है कि आप उस स्ट्रैटेजी को लगा सको, तो वो फिजिबल होनी चाहिए। तो इट इज फिजिकल, human and financial resources. There are other resources also that is required for the working of the strategy. Then comes the next thing, that is consistency. Consistency मतलब आपकी जो strategy है वो आपके organization की प्रेजेंट स्ट्रैटेजी के साथ भी जानी चाहिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रेजेंट कल्चर के साथ भी जानी चाहिए, आपके स्ट्रक्चर के साथ भी जानी चाहिए। सो दिस स्ट्रैटेजी शुड गो विद द इंटरनल एनवायरनमेंट एज वेल। वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। तो आप कैसे पता लगाओगे कि आपकी स्ट्रैटेजी कंसिस्टेंट है या नहीं है? इसका मतलब ये आप देखोगे कि क्या आपके इश्यू, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इश्यू बेस्ड ज़्यादा पॉइंट्स आ रहे हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मतलब इश्यू बेस्ड ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, गोल इंटरनलाइजेशन हो गया है, सब यूनिट गोल इंटरनलाइजेशन हो गया है, जैसे कि एक यूनिट के प्रोग्रेस की वजह से दूसरे यूनिट को जेलेसी हो रही है या वो फेल्ड महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब सब यूनिट साथ में नहीं चल रही है, एक यूनिट की प्रोग्रेस मतलब ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस नहीं है, तो एक सब यूनिट गोल इंटरनलाइजेशन हो गया है। और ये जो पॉलिसी प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करती रहती है और ये इश्यूज आते रहते हैं टॉप मैनेजमेंट के पास, जब हम ये समझते हैं कि स्ट्रैटेजी कंसिस्टेंट नहीं है, स्ट्रैटेजी इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। देन द थर्ड पॉइंट इज कंसोनेंस। कंसोनेंस क्या बोलती है कि इट शुड बी अडैप्टिव, adaptive with the change in the environment, adaptive with the current trends. So you have to see the current trends of the strategy, also the trends of the environment, and see whether your strategy is adaptive or not. Advantage मतलब this strategy is giving you some competitive advantage. It should give you advantage either in resource or in skills or in position. कोई एडवांटेज इसको आपको देना चाहिए, आपको एक कॉम्पिटिटिव पोजीशन ही प्रोवाइड कर रही है, स्किल प्रोवाइड किया है, रिसोर्स प्रोवाइड किया है, तो ये अगर कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे रही है, दैट मीन्स this strategy is worth it. So every strategy that is there in your organization should be consistent, should be feasible, should be consonant, should be adaptable, and fourth is it should be giving you some competitive advantage. So this way you come whether your strategy is proper, is good, it is doable, it is working for the organization or not. इस तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजी को इवैल्यूएट कर सकते हो as suggested by Richard Rumelt. Okay, now comes up the next topic, that is why not easy. ये इतना इजी क्यों नहीं है? स्ट्रैटेजिक ऑडिट इतना इजी काम क्यों नहीं है? स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन इतना इजी काम क्यों नहीं है? सबसे पहले देयर इज ड्रामेटिक इंक्रीज इन द एनवायरमेंटल कॉम्प्लेक्सिटी। जब एनवायरमेंटल कॉम्प्लेक्सिटी में ड्रामेटिक इंक्रीज होता है तो इट डज नॉट बिकम इजी टू इवैल्यूएट अ स्ट्रैटेजी। देन हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है कि हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर पाएँ कि the increasing number of variables in environment, the rapid rate of obsolescence of even the best plans, मतलब environment में इतने fast changes हो रहे हैं और जो best to best plans होते हैं वो भी obsolete हो जाते हैं with time. So it becomes difficult to evaluate whether the strategy is good or not, whether you need to change the strategy या फिर strategy में कुछ हमको current changes ही करने हैं, मतलब एक strategy को complete overhaul करना है या फिर उस strategy में थोड़े से improvements करने हैं। देन वही डोमेस्टिक और वर्ल्ड इवेंट्स दोनों में ही चेंज बहुत इंक्रीज हो गया है इवेंट्स में। देन डिक्रीजिंग द टाइम स्पैन इन विच प्लानिंग कैन बी डन, तो हमारे पास जो प्लानिंग के लिए भी टाइम होता है वो बहुत कम होता है। तो इवैल्यूएशन क्यों इजी नहीं है? पहली बात तो एनवायरनमेंट हमारा बहुत फास्ट चेंज कर रहा है, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, प्लानिंग के लिए टाइम भी हमें काफ़ी कम मिलता है, एंड डोमेस्टिक और वर्ल्ड इवेंट्स दोनों में चेंज हो गया, इवेंट्स में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। So it is not that easy to evaluate the strategy कि आप पहले से अच्छे से strategy evaluate कर सको। So this particular slide tells us कि why it is not easy to evaluate strategy in the current periods, मतलब आज के टाइम पे इतना difficult क्यों हो गया है strategic evaluation. So this brings me to the end of this topic of strategic evaluation. So let's just revise हमने जो strategic audit में आज पढ़ा। Strategic audit as a subject, as a topic has answers us 5 questions. यहाँ से देखिए हमने देखा strategic audit में आज के वीडियो में हमने 5 क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश की है। The first question was what is strategic audit, and in the first question we talked about the meaning of strategic audit कि आखिर strategic audit क्या है। It is the evaluation and examination of the firm's strategy
है ना, उसको हम उस स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, पूरे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस को इवैल्यूएट कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं, उसे हम स्ट्रैटेजिक ऑडिट कहते हैं। इसमें हम उन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हमारी स्ट्रैटेजी प्रेजेंट में काम कर रही है, क्या वो फ्यूचर में काम करेगी, देन क्या वो ट्रेंड्स के साथ अडेप्ट करेगी, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस के साथ काम कर सकती है, और क्या हमें उसमें चेंज की जरूरत है या नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इज देयर एनी नीड फॉर change. So what can we talked about the meaning and the questions that the strategic audit answers. Then comes the next question. Next question was actually next question was why this strategic audit is essential. उसमें हमने देखा, ये हमें बताती है कि क्या हमें चेंज की नीड है। देन सेकेंडली ये टॉप मैनेजमेंट के साथ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिसमें हम टॉप मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन कर सकते हैं अबाउट द स्ट्रैटेजी, जो हमारी ऑनगोइंग स्ट्रैटेजी है, बिजनेस प्लान्स हैं, उसके बारे में। Then is provide a periodic review प्रोवाइड करता है, periodic review and evaluation of the strategy भी प्रोवाइड करता है। Then comes the next question, that is when this strategic audit is required. Okay, हम कब strategic audit करेंगे, तो ध्यान से देखना, जब हमारी strategy properly not working properly, हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हम फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं, हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं, और जब एनवायरनमेंट में एक बहुत बड़ा चेंज होता है, और जब टॉप मैनेजमेंट या तो स्ट्रैटेजी को चेंज करना चाह रही है, या फिर अपनी पुरानी स्ट्रैटेजी को रिव्यू करना चाह रही है, या फिर देखना चाह रही है कि आपके एनवायरमेंटल कंडीशंस के साथ आपकी स्ट्रैटेजी एप्ट है या नहीं है। ओके, देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच विल टॉक अबाउट हाउ दिस थिंग इज डन, हाउ दिस स्ट्रैटेजिक ऑडिट इज डन। हाउ दिस स्ट्रैटेजिक ऑडिट में हमने 3 स्टेप्स देखे हैं। 3 स्टेप में पहला स्टेप ये था कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इवैल्यूएट योर स्ट्रैटेजी, फिर हम करेक्ट ये जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट के साथ एक्चुअल रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं, और फिर उसके बाद में हम तीसरी चीज थी कि हम विल टेक करेक्टिव एक्शन। ओके, और इसी के अंदर दिस हाउ क्वेश्चन में हमने रिचर्ड रुमोल्ट का एक वो देखा था, दिस he told us about the strategy evaluation criteria. आपने इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज भी देखी थी, जो थी उन्होंने एक कोड जो रिचर्ड डोमल्ट का था, where he says that the strategy is not about what you want, strategy is actually the practical actions that you take. ठीक है, और इस क्राइटेरिया में वी टॉक्ड अबाउट 4 मेन कंपोनेंट्स वेयर अ स्ट्रैटेजी हैज टू बी कंसिस्टेंट, आपके गोल्स, उसके गोल्स पॉलिसीज कंसिस्टेंट होने चाहिए, कंसोनेंट होने चाहिए। कंसोनेंट मतलब क्या हो गया कि इट शुड बी अडेप्टेड टू द एनवायरमेंटल चेंजेस, यू विल सी द करंट ट्रेंड्स ऑफ द स्ट्रैटेजी एज वेल एज द एनवायरमेंट। देन कम्स द थर्ड पॉइंट विच इज अबाउट द, एक हो गया कंसिस्टेंट, एक हो गया कंसोनेंट, देन इट शुड बी फिजिबल होना चाहिए। हमने इसका एक एक्रोनिम बनाया था FACC, what came to my mind. So feasible होना चाहिए, और A stands here for that it should give us some advantage, एक competitive advantage देना चाहिए, या तो रिसोर्स के बेसिस पे या स्किल के बेसिस पे, या फिर ये हमें competitive advantage देगा पोजीशन के बेसिस पे। ओके, सो कंसिस्टेंट, कंसोनेंस, फिजिबल एंड एडवांटेज। ओके, फिजिबिलिटी हम देखते हैं, फिजिकल फिजिबिलिटी, फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास हो, फिजिकल हम जो इसके लिए चीज चाहिए वो हमारे पास हो, फिनेंस हमारे पास हो। ये 3 पॉइंट इसमें थे, ये सब इसमें था। आई होप दिस इज कम्प्लीटली क्लियर टू यू। कंसिस्टेंसी में भी हमने 3 क्वेश्चन देखे थे कि या तो आपके ना जो इश्यूज पॉपअप होते जा रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, टॉप मैनेजमेंट के बाद बहुत इश्यू आ रहे हैं, इश्यू बेस्ड प्रॉब्लम्स ज्यादा है रेदर देन द पर्सन बेस्ड प्रॉब्लम्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन, और आपके ऑर्गेनाइजेशन में सब यूनिट गोल इंटरनलाइजेशन हो गया है, एक यूनिट की गोल सक्सेस की वजह से दूसरे यूनिट को फेल्ड महसूस हो रहा है या फिर जेलेसी हो रही है, तो वो उस केस में आपकी स्ट्रैटेजी कंसिस्टेंट नहीं है। आई होप दिस इज कम्प्लीटली क्लियर। फिर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे रह जाता है, वो है in this case कि why this is not so easy, strategy evaluation is not easy, है ना, why not easy, strategy evaluation not easy। उसमें हम देखते हैं कि एनवायरमेंट में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सटर्नल, मतलब इंटरनेशनल एनवायरमेंट में बहुत सारे इवेंट्स हैं जो बढ़ गए हैं, प्लानिंग के टाइम पे हमें इतना टाइम नहीं मिल पाता है, एनवायरमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है, और इतना ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं कि बेस्ट ऑफ बेस्ट स्ट्रैटेजी भी जल्दी ही ऑब्सोलीट हो जाती है। I hope this is clear to you. So then this whole slide we have the strategic audit. पूरी strategic audit है what, why, when, how and why. So I hope this was a meaningful video for you guys. If you like this video, don't forget to mention in the comment box and
hit the like button. I'll see you next time in the next video, and soon I'll be coming with BPR as well as the business benchmarking. Okay, so we'll be there soon, and till then stay healthy, be happy, and bye.